All right. So this is a test that has been designed for the students who have some upcoming tests. So this is a mock test for kinematics and dynamics both. Both of these chapters are very closely linked. So this is sort of as a practice so that you guys know exactly where you stand before the exams. Let's start. So first of all, we'll be going through the MCQs. So just double check whether this makes sense to you. Started off nice and easy. So this is the answer to question number 1. So question number 1, velocity of an electric car changes as shown. You need to find the acceleration. What you had to note here was that the velocity is in kilometers per hour. So पहले इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं. मैंने आप लोग इसका एक मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर बताया हुआ है. So kilometers per hour, 2 meter per second, you divide by 3.6. So that turns out to be 29.17. And then V minus U over T. This is V, this is U, this is T. So the answer turns out to be D. Question 2. At time t equals to 0, body moves from rest with constant acceleration, straight line. The body is at time t at distance s from its rest position. Graph is drawn of s against t square. Which statement describes the acceleration? So आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए that he is talking about the second equation of motion. S equals ut plus half at square. Ut 0 हो गया, so s equals half at square. This is basically what's on your y-axis. This is what's on your x-axis. So all of this by the straight line equation y equals to mx plus c आपका gradient है. So gradient is a by 2. So acceleration का इसने पूछा है. Acceleration के लिए मैं 2 को वहाँ shift करूँगा. So that's twice of the gradient. 3. Easy question. Just you had to like take care of how you plug in the values in your calculator. So this is v. This is u. This is s. So v square equals u square plus 2as. So acceleration आप यहाँ से calculate करें plugging in the values as shown. So that turns out to be option D. Next, 4. A ball is thrown across the field. Which statement describes the motion of the ball when the effects of air resistance are ignored? A. The ball lands with the same velocity at which it is thrown. इस पेपर में जहाँ ये आया था, this was the most commonly chosen incorrect option क्योंकि velocity same नहीं है. यहाँ पर इसका velocity ये होगा, यहाँ पर इसका velocity ये होगा. Yes, velocity का magnitude same होगा, लेकिन velocity by definition is a vector quantity. अगर आप same कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो हर तरीके से same है, direction की terms में भी और magnitude में भी. But this is not the same in terms of direction, so this is wrong. अगर examiner सिर्फ velocity की जगह इसको speed कह देता तो ये ठीक होता. Right? So this is kind of vague, but it's true. हमें पता है horizontal component of acceleration 0 होता है, constant नहीं होता. And horizontal and vertical components of acceleration are both 0, not true. Vertical component of acceleration हमेशा होता है. Horizontal and vertical components of velocity are both 0, not true. क्योंकि horizontal हमेशा होता है. Horizontal velocity हमेशा होता है, vertical acceleration हमेशा होता है. Next, this is also a straightforward question on equations of motion. So आपको दिया गया है basically initially stationary, so u is 0. This is the value of v. 85 kilometers per hour था. फिर से 3.6 से divide करके इसको मैंने बनाया into meters per second. This is s and you need a. So you use the third equation of motion. So v square equals u square plus 2as और यहाँ से आपका आंसर ऑप्शन ए आ जाता है. Next, question number 8. Pretty typical sort of a question. The graph shows how the velocity of a ball varies with time from the moment it is hit vertically upwards from the ground. So आपको नज़र भी आ रहा है कि according to the scenario described, he has used this idea that vertically upwards है और शुरू वाली velocities भी positive है, तो इसने upwards को positive लिया है. Right? So what is the displacement of the ball from the ground after a time of 3 seconds? तो ये सारा भी एरिया पॉजिटिव है, यानी ये अपवर्ड्स ट्रैवल हुआ. ये एरिया नेगेटिव होने का मतलब ये डाउनवर्ड्स कवर हुआ. सो 20 अपवर्ड्स 5 डाउनवर्ड्स, या आप इस एरिया के साथ नेगेटिव साइन लगा लें.
So 20 upwards, 5 downwards, so net displacement is 20 minus 5, which is 15. Question 7, overtaking का सवाल. Two cars X and Y are traveling along the same straight road. X is traveling at a constant speed of 6 meters per second. Y has a constant acceleration of 0.5 meter per second square. At the instant shown, car X is a distance d ahead of car Y. Y is traveling at a speed of 4 meters per second. Car Y is level with car X after a time of 20 seconds. यानी basically इसने इसको overtake कर लिया. हमें पता है कि जो गाड़ी पीछे है not only does it have to cover all the distance x covers, but it also has to close the gap in on this. सही है. आगे अगर कहीं पर यहाँ overtaking होता है, x ने इतना फासला कवर किया होगा, y ने इतना सारा किया होगा, and the distance between them is d. So we get this equation that sy is sx plus d, right? ये यहाँ से आ गया. sy sx मैं अलग से कैलकुलेट कर सकता हूँ यूजिंग द डेटा गिवन. इनिशियल स्पीड दिया हुआ है. अगर हम x की बात करें, x का तो कांस्टेंट स्पीड है. y के लिए बात करूँ तो एक्सेलरेशन पता है, y का इस वक्त स्पीड पता है, टाइम पता है. सो u a t चाहिए s, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से sy निकाला. That turns out to be 180. x तो कांस्टेंट स्पीड पे है, so basically उसका हाफ at स्क्वायर वाला टर्म है ही नहीं, so it's just ut. So that is 6 meters per second multiplied by the time of 20 seconds, so that's 120. So इस equation को rearrange करूँ, so d is sy minus sx, so 180 minus 120, which is 60. ठीक है. Next option, question 8. अच्छा, कुछ लोगों को ऐसे सवालों में भी मसला होता है. My students, remember we have done questions like this in class. Projectile is fired from point P with velocity v at an angle theta to the horizontal. It lands at point Q, a horizontal distance r from P. Air resistance is negligible. Acceleration of free fall दिया है. Which equation for r is correct? तो r हमें पता है horizontal distance है. Horizontally projectile motion में एक ही equation है, which is speed multiplied by time, right? So horizontal component of velocity multiplied by the time for the journey, which is v cos theta multiplied by time. लेकिन equation में मुझे कहीं time नजर नहीं आ रहा, तो मुझे time का भी expression ढूंढना है. अगर मैं vertically कहूँ तो मैं कह सकता हूँ this is v sin theta upwards, and at the end by symmetry this is v sin theta downwards, right? So my u is positive v sin theta. My final is negative v sin theta. Acceleration is negative g. और मुझे ये full time of the journey capital T चाहिए. So v equals u plus at यूज किया, values plug in की, t को subject बनाया. So basically t की जगह जब मैं रखूंगा 2v sin theta over g, so ये बन जाएगा 2v square sin theta cos theta over g, which is option B. सही है. So you must be able to do this on the spot. Another way to find the time is कि you could have also found the time to max height और फिर आप लोग उसको डबल कर देते. तो ये भी एक और तरीका है that some people like to do. Question 9. A projectile is launched at an angle above horizontal ground and travels through air. अच्छा, ये वाले लफ्ज आपने सवाल से पिक करने हैं. जब जब एयर रेजिस्टेंस सिग्निफिकेंट होगा, वो या तो ऐसे कहेगा that it travels through air, या वो कहेगा कि जैसे अगर एक बॉल गिर रही है, सो इट फॉल्स फ्रॉम अ टॉल बिल्डिंग, या इट हैज़ बिन फॉलिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो जब लॉन्ग टाइम कहता है, वो बेसिकली आपको बताना चाह रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी रीच हो गया है, राइट? सो इन सारे लफ्ज़ के लिए आपने वॉच आउट करना है. प्रोजेक्टाइल रीचेज इट्स मैक्स हाइट. assume that no upthrust acts, which diagram shows the directions of the force. So ideally तो हमें पता है कि weight तो act करता ही है, लेकिन हमें यह भी पता है कि इस वक्त प्रोजेक्टाइल राइट की तरफ मूव कर रहा है. सो एयर रेजिस्टेंस इज टू द लेफ्ट एंड वेट इज डाउनवर्ड्स, सो दैट इज ऑप्शन बी. यस, टी को सब्सटीट्यूट किया, लाइक बेसिकली वर्टिकल से टी निकाला और फिर उसको हॉरिजॉन्टल में सब्सटीट्यूट किया फॉर द रेंज एक्सप्रेशन. ठीक है.
अच्छा, क्वेश्चन 10, a stone is projected vertically upwards from the ground at an initial speed of 15, air resistance is negligible, what is the max height? बहुत ही आसान सवाल. सो अपवर्ड्स फेंका है मैंने, अपवर्ड्स को पॉजिटिव लिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फिर नेगेटिव हो गया, v इक्वल 0, s निकालना है, so s turns out to be 11. This is a question that I did not solve beforehand. I think this is like the most difficult MCQ on this paper. तो मैं इसको खुद से ज़रा समझाना चाह रहा हूँ. So the diagram shows two ways of hanging the same picture. In both cases, a string is attached to the same points on the picture and loops symmetrically over a nail in a wall. Forces shown are those that act on the nail. In diagram 1, the string loop is shorter than in diagram 2. सही है? तो यहाँ पर इसने बड़ी रस्सी यूज़ की और ये कह रहा है विच इंफॉर्मेशन अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्सेज इज करेक्ट. अब आप एक ऐसा सवाल ट्राई ही कैसे करते हैं? देखिए, पहली चीज जो आपने नोट करनी है वो ये है दैट टेंशन इज एक्टिंग एट एंगल्स, एंड व्हेन फोर्सेस एक्ट एट एंगल्स इट शुड बिकम सेकंड नेचर टू यू टू रिजॉल्व दोज फोर्सेस. ठीक है, अगर मैं रेजोल्यूशन के हिसाब से बात करूं, इधर पे बेसिकली दिस वन इज नॉट विद द कंपोनेंट, तो ये t1 साइन थीटा हो जाएगा और यहां से भी t1 साइन थीटा आएगा, विच मेक्स इट 2t1 साइन थीटा 1, राइट. और अगर लेफ्ट वाले में करूं तो लेफ्ट वाले में भी ऐसा ही होगा. तो जो यहां से हो जाएगा ये डाउनवर्ड फोर्स, दैट इज t2 साइन थीटा 2 एक स्ट्रिंग से, लेकिन फिर उसके दूसरे हिस्से से 2t2 आ रहा होगा, राइट. सो t2 साइन थीटा 2 फ्रॉम हियर एंड देन t2 साइन थीटा 2 फ्रॉम हियर एज वेल, क्योंकि सिमेट्रिकली लूप हुआ हुआ है ना. तो ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये बराबर है, राइट. अच्छा, अब R एक फोर्स है. सो R क्या फोर्स है? अगर मैं सोचूं कि पूरे फ्रेम पे क्या लग रही है, सो R इज बेसिकली द फोर्स दैट इज अप्लाइड अपवर्ड्स, एंड इन रियलिटी दैट इज जस्ट द वेट ऑफ दिस एंटायर फ्रेम, राइट. यहां तो देखें मैंने नेल पे फोर्सेस कंसिडर की ना, अगर मैं फ्रेम पे फोर्सेस कंसिडर कर रहा होता तो मुझे पता है कि भाई फ्रेम का अपना वजन होता और यहाँ पे इसी तरीके से ये कंपोनेंट्स होते हैं और रस्सी बेसिकली इसके वेट को सपोर्ट कर रही है. और यहाँ पर अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वही फोर्सेस जो हैं वो अब नेल पे लग रही हैं. सो बेसिकली जो R है दैट इज जस्ट द वेट, और अगर मैं उसी पिक्चर को टंगा रहा हूँ तो R तो चेंज नहीं होगा. सो इट मस्ट बी ईदर दिस और दिस. ठीक है, सो R1 और R2 तो बराबर है. अच्छा, अब दूसरा अगर मैं देखूं यहां पर, लेट से मैं एक एक्सप्रेशन लिखूं R इक्वल्स टू 2t साइन थीटा, एंड लेट्स टॉक अबाउट गोइंग फ्रॉम डायग्राम 1 टू डायग्राम 2. अगर मैं डायग्राम 1 से डायग्राम 2 गया हूं तो थीटा को क्या हो गया, जरा यहां देखें. कैन यू सी दैट द एंगल हैज इंक्रीज्ड? और फॉर द पीपल जो कि मैथ पढ़ते हैं उन्होंने अभी पढ़ा होगा साइन थीटा का ग्राफ, और आपको पता है 0 से 90 साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनता है? यूं बनता है, वैसे तो पूरा यूं बनता है, राइट. एंड दिस पॉइंट इज 90. तो यहां आपको क्या नजर आ रहा है कि जब आपका एक्यूट एंगल होता है, सो बिटवीन 0 एंड 90 जैसे कि थीटा बढ़ता है तो साइन थीटा का वैल्यू भी बढ़ता है, और हमारे पास एक्यूट एंगल ही है. अगर थीटा बढ़ेगा इसका मतलब है कि साइन थीटा भी बढ़ेगा, राइट. आर को कुछ नहीं हो रहा, अगर ये पूरी चीज बढ़ रही है साइन थीटा, तो टी को क्या हो रहा होगा? इन गो टी कम हो रहा होगा. सो T2 is going to be less than T1 या T1 is greater than T2, which is option B. Alright, let's move on. Question number 12. A strong wind of speed 33 meters per second blows against a wall. Density of air is given. Wall hits an area of 12 meter per second. Air has its speed reduced to 0. तो ये वो mass flow rate वाला सवाल है, right? What is the approximate force exerted by the air on the wall? So rho a v square. आपने values plug in की, आंसर निकाला, so that's option D, right? So density दिया होता है, so it applies to fluids which are flowing. तो उसमें जो हमारे पास forces आती हैं वो इस फॉर्मूले के थ्रू आती हैं.
13, the diagram shows a particle X with kinetic energy Ek about to collide with a stationary particle Y. Both particles have the same mass. After colliding, X and Y travel onwards together as a single larger particle. How much kinetic energy is lost? तो भाई आपका जो particle X है, फर्ज करें इसका velocity v है, and I'm just using this to show a point. जब दोनों सेम मास के पार्टिकल साथ आ जाएंगे तो कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक पहले अगर इसका मोमेंटम mv था, बाद में भी mv होना चाहिए, लेकिन बाद में मास डबल हो गया. लेट्स से मुझे नया v चाहिए, v डैश. m's कैंसिल, द न्यू वेलोसिटी इज हाफ ऑफ व्हाट इट वाज हियर. मैं अगर किनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के बारे में सोचूं, सो दैट्स हाफ mv स्क्वायर, राइट. मास डबल हो गया, वेलोसिटी आधा हो गया, लेकिन वेलोसिटी के साथ इट्स डायरेक्ट स्क्वायर प्रोपोर्शन. तो मतलब वेलोसिटी में जो भी चेंज आएगा वो स्क्वायर होके पास ऑन होगा आगे, यानी टाइम्स 2 टाइम्स 1/4. सो द किनेटिक एनर्जी हैज बिकम हाफ ऑफ व्हाट इट वाज. सो ऑब्वियसली हाफ हैज नाउ आल्सो बीन लॉस्ट. सो दिस इज ऑप्शन सी. Next, this is also a tricky question. Wooden block is freely supported on brackets at a height of 4 meters above the ground as shown. A bullet of mass 5 grams is shot vertically upwards into the wooden block of mass 95, embeds itself, impact causes the block to rise. Bullet hits the block with this velocity. How far above the ground will the block be at the max height? तो सबसे पहली चीज़, दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्टिकी कोलिजन. जब ये इसके अंदर दाखिल हो जाएगा, सो नाउ दे विल मूव ऑफ एज वन ऑब्जेक्ट टुगेदर. तो पहले तो मैंने उसका वेलोसिटी निकाला बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो 5 × 200 इक्वल्स टू द टोटल मास जो अब हो जाएगा, विच इज़ 5 + 95, सो दैट्स 100v. यहाँ से v आता है 10. सो दिस इज 10 मीटर्स पर सेकेंड. u बेसिकली इस ब्लॉक और बुलेट का u इज 10. फाइनल वेलोसिटी 0 एट द मैक्स हाइट. एक्सेलरेशन इज -9.81. आपने s निकाला, v स्क्वायर इक्वल्स u स्क्वायर प्लस 2as से. सो s आया 5.09 मीटर्स. और उसके बाद आपको अबव द ग्राउंड चाहिए, तो यानी 5.09 यहाँ से है, तो आप इसको भी ऐड करेंगे. सो 5.09 + 4 दैट इज 9.1 मीटर्स. Question 15. A bus takes a time of 25 seconds to reach a constant speed while traveling in a straight line. Graph of speed against time is shown. Which graph shows the variation with t of the resultant force F on the bus? अच्छा, ये वाले सवाल कैसे करते हैं? When you know that resultant force का डायरेक्ट वेलोसिटी से तो लिंक नहीं है, उसका लिंक एक्सेलरेशन से है. और एक्सेलरेशन यहाँ से कैसे पता चल सकता है? By the gradient. So I can see in the first part the gradient is constant, and then it's a higher constant value, and then it decreases. So constant, higher constant, and then decreasing. So that's option A. ठीक है, ऐसे सवाल कॉमन है, आपको पास पेपर्स में मिलेंगे जहां वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया होगा, फोर्स टाइम ग्राफ पूछा होगा, और द अदर वे अराउंड. द आइडिया इज द सेम. Question 16. A book of weight W is at rest on a table. A student attempts to state Newton's third law of motion by saying that action equals reaction. If weight of the book is the action, what is the reaction? So weight earth ने book पे लगाया downwards, तो reaction क्या हो जाएगा? जो book earth पे लगाए लेकिन upwards, so that's option C. 17. Two solid spheres form an isolated system. Sphere X moves with speed 6 cm per second in a straight line directly towards a stationary sphere Y as shown. Spheres have a perfectly elastic collision. After collision, X moves with speed 2 cm per second in the same direction as before the collision. What is the speed of Y? तो पहली बात तो मुझे ये पता है कि Y लेफ्ट की तरफ तो नहीं जा सकता, उसका कोलिजन हो जाएगा वरना फिर से. So it has to move to the right, और जाहिर है उसका स्पीड जो है वो 2 से ज़्यादा होगा, वरना 2 पीछे से फिर आगे टक्कर मारेगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल. सो रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज जस्ट 6 बिकॉज वाई तो वैसे भी मूव नहीं कर रहा था. एंड रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन इज v - 2. सेम डायरेक्शन हैं तो सब्ट्रैक्ट किया और v को सब्जेक्ट बनाया, सो इट टर्न्स आउट टू बी 8.
18, two balls, one of mass 2m and one of mass m collide. Diagram shows initial and final. Which collision is not elastic? इसमें relative speed of approach भी 3, separation भी 3. इसमें भी approach 3, इसमें भी separation 3. इसमें approach 8 minus 2 6 और separation 8 minus 5 3. This is not equal, so this is the inelastic collision. D में भी दोनों 6 6 हैं. All right. 19. A nitrogen molecule traveling at a speed of 320 meters per second in a vacuum collides with a stationary nitrogen molecule Q. After collision, P travels at a velocity of 180 meters per second at an angle of 55 degrees to its original path. Q travels in a direction at an angle of 34 degrees to the initial path of P. अच्छा, दोनों नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, P भी Q भी, तो मुझे पता है इनके मासेस बराबर हैं. Assume no external forces act. What is the magnitude V of the velocity of Q after the collision? मैंने vertical यूज़ किया क्योंकि मेरी इतनी प्रैक्टिस है, मुझे देख के पता चल गया कि horizontal में एक्सप्रेशन थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल बनेगा. Horizontal का एक्सप्रेशन would look like this: m times 320, this is total momentum before, equals total momentum after, तो वो हो जाता है m times 180 cos 55 plus m times v cos 34. तो यहाँ से फिर सारे m's कैंसिल होते और फिर मैं यहाँ से सब्जेक्ट बनाता. आंसर दोनों से सही आता, बट दिस वन इज जस्ट अ बिट ईजियर. वर्टिकली पहले कोई मोमेंटम नहीं था, तो मैं कह सकता हूँ आफ्टरवर्ड्स जितना ऊपर है उतना ही नीचे होना चाहिए ताकि ये कैंसिल हो जाए. तो m टाइम्स 180 साइन 55 इक्वल्स m टाइम्स v साइन 34. कॉन्जर्वेशन ऑफ मोमेंटम 2D मोमेंटम के केसेस में आपने हमेशा सबसे पहले रिजॉल्व ही करना है. 20, दिस इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड. So hits with a horizontal velocity of 20, rebounds with 15. Rebound का मतलब है 15 opposite direction में है. So एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, फिर चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला यूज करें. So the answer is option D. नेक्स्ट, स्ट्रेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. दिस इज़ द वन आई लाइक. मैंने आज आप लोग को अपडेटेड नोट्स भी भेजे थे, तो उसमें मैंने सारे न्यूटन्स लॉज के फोर्सेस वाला वर्जन भी लिखा है, मोमेंटम वाला वर्जन भी लिखा है. मैंने यहाँ पर मोमेंटम वाला वर्जन लिख दिया. सो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. फिर ये वाला सवाल है, इसकी सारी कहानी है. सो इट्स हॉरिजॉन्टल मैग्नीट्यूड 5.4 मीटर्स पर सेकेंड से इसको फेंका गया है. दिस इज अगेन अ क्वेश्चन ऑन हाफ प्रोजेक्टाइल मोशन. Parcel takes a time of 0.81 seconds after its release to reach a point Q on horizontal ground. Assume air resistance is negligible. Draw an arrow from X to show the direction of acceleration. So that's just the acceleration due to gravity. Horizontal direction में तो acceleration नहीं होता है. Determine height H. Height H vertical है. So आपने सोचा कि भाई vertically अब काम करूँगा. U कोई भी नहीं है और मुझे चाहिए height. So U कुछ भी नहीं है. It was dropped from H. So S is H, A is 9.81 और आपको चाहिए, आपको टाइम पता है 0.81. So you can find H using S equals UT plus half AT square. मैंने डाउनवर्ड्स को नेगेटिव लिया, तो ऑब्वियसली मेरा आंसर भी S का नेगेटिव आ रहा था. आप उसको छोड़ देंगे आंसर लिखते वक्त क्योंकि उसने हाइट पूछा है. हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो फिर मुझे टाइम पता है और ये स्पीड पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा और मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगा. और आपको ये भी पता है कि एग्जामिनर अगर मुझसे पूछे रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो वो भी फिर मैं आसानी से पाइथागोरस के जरिए निकाल सकता हूँ. Another parcel is accidentally released from rest by a different aircraft when it is hovering at a great height above the ground. Air resistance is now significant. Draw arrows to show the directions of the forces acting on the parcel as it falls vertically downwards. Label each arrow with the name of the force. So downwards weight है, ऊपर की तरफ air resistance है. By considering the forces acting, state and explain the variation, if any, of the acceleration of the particle as it moves downwards before it reaches constant terminal speed. और ये 3 मार्क का सवाल है. ठीक है, अब आपको इसमें प्रॉपर्ली समझाना है. तो देखें, शुरू में जैसे ये रिलीज हुआ है
So the only force acting is the weight, so the acceleration is acceleration due to gravity. जिस तरीके से एक्सेलरेट होता है, आपको एक मार्क ये बताने का है कि एयर रेजिस्टेंस बढ़ेगा स्पीड के साथ, फिर आपने बताया कि रिजल्टेंट फोर्स डिक्रीज होगा जिसकी वजह से एक्सेलरेशन डिक्रीज होगा, राइट. एंड आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे इसका मार्क नहीं है क्योंकि उसने बिफोर कांस्टेंट स्पीड कहा था, लेकिन मैंने वैसे कह दिया कि अल्टीमेटली एयर रेजिस्टेंस बढ़ते बढ़ते वेट के बराबर हो जाता है, जिससे रिजल्टेंट फोर्स और उसकी वजह से एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है. वैसे ये पार्ट अभी तक हमने नहीं किया है, बट आई थिंक दिस इज़ एन ओ लेवल कॉन्सेप्ट. तो डिस्क्राइब द एनर्जी ट्रांसफर दैट अकर्स व्हेन द पार्सल इज फॉलिंग थ्रू द एयर एट कांस्टेंट स्पीड. कांस्टेंट स्पीड है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो नहीं बढ़ रहा, राइट, लेकिन ये गिर रहा है तो जीपीई कम हो रहा है. तो वो जीपीई का लॉस कहाँ जा रहा है? दैट्स बेसिकली टर्निंग इनटू थर्मल एनर्जी बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टिव फोर्स. Trolley moves down a slope as shown in 4.1. Slope makes an angle of 25 degrees with the horizontal. Constant resistive force Fr acts up the slope on the trolley. At time t equals to 0, the trolley has velocity v equals 0.5 down the slope. And at 4 seconds, it's 12. Show acceleration is this. अगर आपने acceleration का formula दिखाया, values कुछ plug in की, 1 मार्क, और अगर आपका ये सही आंसर आया तो दूसरा मार्क. देखें, एग्जामिनर ने यहाँ लिखा है approximately, तो ऑब्वियसली आपका आंसर एग्जैक्टली 3 तो नहीं आएगा, राइट. सो इट्स एक्चुअली टर्निंग आउट टू बी 2.875. और आगे की कैलकुलेशंस में भी जहां एक्सेलरेशन यूज करना होगा, यू वोंट यूज 3 क्योंकि तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, आप अपना कैलकुलेटर वैल्यू ही यूज करेंगे. पार्ट 2, कैलकुलेट द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रॉली डाउन द स्लोप फ्रॉम 0 to 4. तो मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है और टाइम पता है. सो s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और फिर मैंने इसका ग्राफ बना दिया. अच्छा, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्लोप, तो मुझे पता है कि डिस्टेंस बेसिकली, अगर 1 सेकेंड के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी मैं कहूँ u नहीं है, तो आपको पता है s वर्सेस t स्क्वायर का ग्राफ ये क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप का होता है. सो इस तरीके से इंक्रीजिंग ग्रेडियंट का कर्व बनेगा, सही है. अच्छा, बिकॉज यहाँ पर ut है, कुछ इनिशियल भी है, तो अगर आप यूं भी बनाएं तो भी सही है और यूं भी बनाएं तो भी सही है, राइट. द एग्जामिनर इन दिस मार्क्स स्कीम हैज अवॉर्डेड बोथ ऑफ दीज मार्क्स. मास ऑफ द ट्रॉली इज 2 kg. शो दैट द कंपोनेंट ऑफ द वेट ऑफ द ट्रॉली डाउन द स्लोप इज 8.3. अच्छा, ये तो हमें पता है और ये याद रखना चाहिए कि कंपोनेंट डाउन द स्लोप इज w sin थीटा, कंपोनेंट परपेंडिकुलर is cos थीटा. उसने डाउन द स्लोप कहा था तो एंगल इज 25, मास दिया उसने 2, सो mg sin थीटा which turns out to be 8.29 न्यूटन. कैलकुलेट द रेजिस्टिव फोर्स Fr. तो ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेट्स डाउन द स्लोप, तो जाहिर सी बात है ये ज़्यादा है और Fr कम है, जो रेजिस्टिव फोर्स है, इसको मैं R कह देता हूँ. सो मुझे पता है कि जो भी मैंने अभी फोर्स निकाला ये 8.29, दिस इज मोर, सो आई कैन से सिंस रिजल्टेंट फोर्स इक्वल्स मास टाइम्स एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन भी नीचे की तरफ है यानी 8.29 ज़्यादा है. सो 8.29 माइनस r इक्वल्स द मास विच आई गेस वाज 2 टाइम्स एक्सेलरेशन जो यहाँ पर है 2.875, और यहाँ से आप r निकालें. यही चीज़ मैंने यहाँ पर करके बताई है. सो Fr turns out to be 2.54. अगर आपने यहाँ पे ये सही वैल्यू सब्सटीट्यूट की हैं, 1 मार्क, रीअरेंज करके F सही निकाला है, दूसरा मार्क. क्वेश्चन 3, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. आपको पता है कि इसमें 2 जुमले कहने होते हैं. क्लोज सिस्टम 1 मार्क, टोटल मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट, दूसरा मार्क. 2 balls x and y move along a horizontal frictionless surface as shown from above in 4.1. सो ये रहा 4, आपने इसको रिजॉल्व किया, ये 4 cos हो गया, ये 4 sin हो गया. ये रहा 4.8, तो ये 4.8 cos हो गया, ये 4.8 sin हो गया, राइट. सो आपने यहाँ पर ये कर लिया. उसने कहा बाय कंसिडरिंग कंपोनेंट्स अलोंग लाइन ए बी कैलकुलेट थीटा, राइट. सो अलोंग किया तो 3 times 4 cos थीटा प्लस 2.5 times 4.8 cos थीटा इक्वल्स इन दोनों का मास, दे हैव स्टक टुगेदर आफ्टर.
So 3 plus 2.5 which is 5.5 times 3.7. और फिर यहाँ से मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँ, cos थीटा में से cos इनवर्स करके थीटा निकालूँ, so this is what it turns out to be. ठीक है. By calculation of kinetic energy, state and explain whether the collision is elastic or inelastic. So पहले क्या क्या मूव कर रहा है, ये और ये और ये. Kinetic energies के एक्सप्रेशन बनाएं, हाफ इंटू 3 इंटू 4 स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 2.5 इंटू 4.8 स्क्वायर. तो ये इनिशियल मेरा 39 आ रहा है, फिर आप फाइनल करें. सो हाफ इंटू 5.5 इंटू 3.7 स्क्वायर, तो वो आता है 37.6. के इज नॉट कंजर्व्ड हियर, ये एंड में स्टेटमेंट लिखना है. हेंस दिस इज inelastic. सही है. So that was this entire paper. So इसमें काइनेमैटिक्स डायनामिक्स दोनों के काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट्स असेस हुए और काफ़ी डेप्थ वाला पेपर था. So if you did well on this, that means you have a good preparation. जहाँ नहीं हुआ है उस पर फोकस करें और वो वाली चीज़ें आप जो हैं अच्छे से रिवाइज करें कल के पेपर से पहले. Alright? So that's all for this video. So just go ahead and like this video, comment if you have any questions or suggestions for future videos, and subscribe to the channel for more content like this. And I'll see you in the next video. Allah Hafiz.